Hey there, welcome or welcome back to my channel, The Digital Masterni. This is Anam. I make videos on pre-primary education and grammar lessons. Today I'm here with yet another topic, that is nouns, singular and plural. In the previous video we have talked about the noun and its kinds, and today we will be discussing singular and plurals as the form of nouns. Okay, so let us begin. Also, before starting the topic, I would request to all of you, kindly subscribe to my channel, and if you like this video, kindly give this a big thumbs up, share it with your friends, comment down below, and hit that bell icon to get notified whenever I upload a new video. Yes, so let's begin. Yes, students, as I've said, we will be talking about singular and plural nouns today. So before starting the explanation of singular and plural nouns, let us just give this a little warm up. Okay, so when we say singular and plural, the first question that arises in our mind is that what are singular and plurals, and the second question is how do we change singulars into plurals. Okay, so firstly we will be talking about singular and plural nouns. Then secondly we will be discussing how to change singular ones into plurals. Okay, so now that you are wondering what singular and plural nouns are, don't worry, I've got you covered. I've got all the answers to all of your questions. Firstly, we will be discussing what singular and plural nouns are. So as you can see here, what singular nouns are. Okay, so it is a form of a noun which refers to one person or thing. For example, chair or book. Okay, so when we are talking about some nouns, okay, in the previous video I have explained what nouns are, what common nouns, what proper nouns, and what abstract nouns are. So you are all aware to what nouns are. Now talking about singular and plurals. So before starting the explanation of singular and plural, let us just recapitulate the nouns. All of you know that the grammar is a system. Okay, so until and unless you are not aware with the previous lesson, you won't be able to understand the next one. So it is very important, it is mandatory to understand the previous chapter very attentively. If you have not seen my previous video, kindly do give it a try. I will give the link in the description, so kindly check the description box down below this video. Okay, so to recapitulate, I'll tell you in brief what nouns are. All the naming words are called nouns, whether it be a name of a person, animal, place or a thing, it will be called as a noun. Okay, जब हम एक noun के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी भी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर एक कुर्सी है तो हम उसको चेयर कहेंगे, अगर एक किताब है तो हम उसको बुक कहेंगे, तो ये सिंगुलर नाउन होते हैं. अच्छा, प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ नाउन विच रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग. ओके, ये नाउन की वो फॉर्म होती है जो एक से ज़्यादा, यानी कि दो या दो से ज़्यादा के बारे में बात करती है. जैसे कि अगर एक कुर्सी है तो वो चेयर कहलाएगी और सिंगुलर नाउन होगा. अगर एक से ज़्यादा कुर्सियां हैं तो वो चेयर्स कहलाएंगी और वो प्लूरल नाउन होगा. सिमिलरली अगर एक बुक है तो वो बुक कहलाएगी, एक से ज़्यादा है तो बुक्स कहलाएंगी. एक से ज़्यादा के बारे में अगर बात हो रही है दैट इज़ प्लूरल, और अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है दैट इज़ सिंगुलर. क्लियर? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. Students, let us learn the ways in which plurals can be formed. ओके, सो हमने ये जान लिया कि सिंगुलर और प्लूरल्स क्या होते हैं. अब हमें ये जानना है कि सिंगुलर को प्लूरल में किस तरह तब्दील किया जाता है, किस तरह चेंज किया जाता है. ठीक है, सो अभी मैंने आपको पिछली डिस्क्रिप्शन में बताया कि नाउन के टू फॉर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. पहला है आपका सिंगुलर्स और दूसरा है आपका प्लूरल्स. ओके, सो सिंगुलर तो आपको पता ही चल गया है कि सिंगुलर क्या होते हैं. जब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द प्लूरल्स. प्लूरल्स also have two divisions. First is regular plurals and the second one is irregular plurals. Okay, now what regular and irregular plurals are?
we'll be discussing it in a very detailed explanation. So let us just start with the regular plurals firstly. So students, I have prepared these notes for you, and for changing the singulars into plurals I have mentioned 6 points for each. Like अगर आपको regular singulars को जो है singulars को अगर regular plurals में change करना है, उसके लिए I have written 6 points here. एंड अगर आपको सिंगुलर्स को इरेगुलर प्लूरल्स में चेंज करना है, फॉर दैट टू आई हैव 6 पॉइंट्स. ओके, सो फर्स्टली विल स्टार्ट विद our regular plurals. Okay students, as you can see here it is written that अभी देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि प्लूरल्स के जो है 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है आपका रेगुलर प्लूरल और दूसरा होता है इरेगुलर प्लूरल. दोनों के लिए ही मैंने 6 पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप अच्छे से और इजीली समझ पाएँ कि किस तरह हम सिंगुलर्स को प्लूरल में चेंज करते हैं. यूजुअली क्या होता है कि लोग जब स्पोकन इंग्लिश का यूज़ करते हैं, यानी कि जब इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिंगुलर को जब प्लूरल में तब्दील करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो बोलने में अच्छा नहीं लगता, साथ ही साथ सुनने वाले को बहुत ऑड लगता है. हालांकि बोलने वाले को ग्रामर आती है, लेकिन थोड़ा सा रूल्स जो है वो ध्यान नहीं देता बोलते समय. तो अभी अगर आप इन पॉइंट्स को समझेंगे तो आगे आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में भी आसानी होगी. आने वाले समय में बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए, जहाँ पर आप इजीली इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं. आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो फॉर एवरी वीक. मैं हर हफ्ते एक वीडियो उसकी पोस्ट किया करूँगी. सो देयर विल बी अ स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ जहाँ पर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं. सो स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग. येस, नाउ कमिंग बैक टू अवर लेसन. मैं बात कर रही थी कि मैंने 6 पॉइंट्स तैयार किए हैं आपके रेगुलर और इरेगुलर प्लूरल्स के लिए. तो सबसे पहले हम रेगुलर प्लूरल्स के बारे में बात करेंगे. देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, इट सेज दैट वी यूजुअली फॉर्म द प्लूरल ऑफ अ नाउन बाय एडिंग एस टू इट्स सिंगुलर फॉर्म्स. ओके, ये हमारा सबसे इजी रूल है जो सभी को आता है. ठीक है, हम क्या करते हैं आमतौर पर जो है जो नाउन की सिंगुलर फॉर्म होती है उसमें सिर्फ एस ऐड कर देते हैं और वो हमारा प्लूरल बन जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक कार है और उसको हमें प्लूरल में चेंज करना है तो कार का कार्स हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, फ्लावर का फ्लावर्स हो जाएगा और शर्ट का शर्ट्स हो जाएगा. अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए हमने क्या किया. यहाँ पर हमने सिर्फ एस जो है ऐड कर दिया इसमें और ये प्लूरल बन गया. सिंपल एज दैट. नाउ पॉइंट नंबर 2. अब देखिए पॉइंट नंबर 2 की जब हम बात करेंगे, इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, अगर एक सिंगुलर नाउन के एंड में आपको एस दिखाई दे, ठीक है, डबल एस दिखाई दे, सी एच दिखाई दे, एस एच दिखाई दे या फिर एक्स दिखाई दे, अगर आपको ये 5 थिंग्स दिखाई दे रही हैं वर्ड के अंदर, सिंगुलर वर्ड के अंदर, तो आपको उसे किसके साथ चेंज करना है, उसमें ई एस लगेगा. ये पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखने हैं. जब तक आप ग्रामर पढ़ेंगे तब तक ये आपको हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको ये स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प करेगा. सो इनको बहुत ही आपको ध्यान से समझना है और अपने माइंड में रखना है. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे नाउन्स जिनके एंड में ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच या फिर एक्स आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ई एस. फॉर एग्जाम्पल, बस के एंड में क्या आ रहा है, एस आ रहा है. जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, अगर एस आता है वर्ड के एंड में तो हम वहाँ पर क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं. बस में हमने ई एस ऐड किया, वो बसेज हो गया. अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो सभी को पता है कि बस में ई एस ऐड होता है. नहीं, सब लोगों को नहीं पता होता. देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें सीख लेना चाहिए. जैसे कि अभी हम यहाँ पर बात करेंगे मैच की. अगर हम मैच का प्लूरल बनाएंगे तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसमें एस जोड़ देते हैं, हो गया प्लूरल. नो, देयर आर रूल्स, और अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस, हमारी स्पीकिंग या फिर हमारी जो हमने पैराग्राफ या वट एवर जो भी हमने लिखा है वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा. सो गेट एवरी
everything grammatically correct, we have to follow the rules. So the rule is, अगर आपके वर्ड में एंड में एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है या फिर एक्स आ रहा है, तो आपको वहां पर ई एस ही लगाना है. आप वहां पर ना एस लगा सकते हैं, ना आप जो है वो आई ई एस लगा सकते हैं या वी ई एस लगा सकते हैं. आपको अगर एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स दिख रहा है तो वहां पर आपको यू हैव टू टेक ई एस देयर टू मेक इट प्लूरल. बस में ई एस ऐड किया, बसेस, ग्लास में ई एस ऐड किया, ग्लासेस. ग्लास में क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर डबल एस है, हमने ऊपर डबल एस की बात की थी. मैच में क्यों किया? सी एच है. इसी तरीके से बैच, ठीक है. जो ऐसे सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स हैं जिनके एंड में ये सारे आपके आते हैं, वहां पर जो है ई एस लगेगा. जैसे कि मैच, बैच, ब्रश, हश, बॉक्स, फॉक्स, इस तरीके से, ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 3, रूल नंबर 3, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ, अगर एक सिंगुलर नाउन एंड कर रहा है किसमें? ओ में, यानी कि उसके एंड में ओ आ रहा है, तो वी यूजुअली ऐड ई एस. तो हम वहां पर भी ई एस ऐड करते हैं. जैसे कि पटेटो, पटेटो में हमने ई एस ऐड किया, पटेटोज हो जाएगा. आप अगर पटेटो में सिर्फ एस ऐड करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग. ओके. नाउ अगेन मस्कीटो, मस्कीटो में अगर हम ई एस ऐड करेंगे देन ओनली इट विल बी correctly written, like it will be correctly written. So grammatically ये तभी आपका सही होगा जब आप इसमें es ऐड करेंगे. तो mosquito plus es, it will create the plural mosquitoes. Okay, so you have to have these things in your mind कि जहाँ पर s, double s, ch, एस एच या फिर एक्स आएगा वहां पर आपको ई एस लगाना है, जहां पर ओ आएगा वहां पर आपको ई एस लगाना है. ठीक है. नाउ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हाउएवर द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स दैट एंड इन ओ. अच्छा, कुछ सिंगुलर ऐसे होते हैं जो ओ में तो एंड कर रहे होते हैं लेकिन आप उसमें ई एस नहीं लगा सकते, वहां पर सिर्फ एस से ही काम चल जाता है. जैसे कि जीरो, फोटो, ठीक है. जीरो का एस आप ऐड करेंगे तो जीरोज हो जाएगा, फोटो में एस ऐड करेंगे फोटोज हो जाएगा. नाउ द प्लूरल्स ऑफ सम अदर नाउन्स, कुछ दूसरे नाउन्स के जो प्लूरल्स होते हैं जिनका एंड भी ओ पर हो रहा होता है, कैन टेक बोथ एस और ई एस. यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके एंड में ओ हो, अगर आप उसमें एस लगाएंगे तब भी सही है और ई एस लगाएंगे तब भी सही है. वो दोनों आपका दोनों टाइम पे सही होता है. जैसे कि मैंगो, मैंगो में आप एस लगाकर मैंगोज करेंगे तब भी वो करेक्ट होगा, और मैंगो में ई एस लगाकर मैंगोज करेंगे तब भी वो आपका करेक्ट होगा. सी, तो आपने देखा रूल नंबर 1 वॉज द सिंपलेस्ट वन. द रूल नंबर 2 वॉज ऑल्सो सिंपल, बट rule number 3 is kind of critical. Why? Because it has 3 separate things. अगर सिर्फ O है तो आपका जो है ई एस लग जाएगा. ठीक है. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ओ होने के बावजूद सिर्फ एस लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं चाहे आप उसमें एस लगाइए चाहे ई एस लगाइए वो दोनों तरीके से आपका ठीक होता है. सिमिलरली फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो में आप एस लगाएंगे तब भी वो फ्लैमिंगोज हो जाएगा, और फ्लैमिंगो में ई एस लगाएंगे तब भी वो फ्लैमिंगोज हो जाएगा, और दोनों ही करेक्ट होंगे. सो अभी मैंने आपको बताया था कि मैं 6 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं. इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज or you want to ask something about the same, you can just comment down below. I'll reply to each and every one of you. Okay, so and those जो मेरे ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो you all have my contact number, you all have my WhatsApp, so you can just contact me there also. I will be there every time from 10 a.m. to 7 p.m. You can just contact me there. I will resolve your issues or doubts. Okay. Now coming forward on to the 4th point. What does it say? It says when a singular noun ends in a, e, o, u before y, we add s only. Okay. अच्छा, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में y तो आ रहा होता है, लेकिन हमें y के बेसिस पे जो है प्लूरल नहीं बनाना. हमें किसके बेसिस पे बनाना है? द सेकंड लास्ट लेटर जो y से पहले आ रहा होता है. अच्छा, ये वॉवल होना चाहिए. वॉवल आपको पता है 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली 4 मेंशन्ड है. I के अलावा, एक्सेप्ट I, देयर आर ओनली 4 वॉवल्स जो इस रूल के अंदर आते हैं आपके. A, E, O, U. अच्छा, बिफोर y यानी कि सेकंड लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट लेटर शुड बी अ वॉवल. सो सेकंड लास्ट लेटर अगर आपका वॉवल है तो वहां पर सिर्फ एस लगेगा y से पहले.
ठीक है। अगर Y से पहले आने वाला लेटर A, E, O, U है तो वहां पर आपका सिर्फ S लगेगा टू मेक इट प्लूरल। जैसे कि डे, आप डे में सिर्फ S लगाएंगे, ES लगाएंगे तो दैट विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। सिमिलरली की में भी अगर आप ES लगाएंगे दैट विल बी ऑल्सो ग्रामेटिकली रॉन्ग। सो आप यहाँ पर ऐसे लेटर्स जिनमें Y से पहले वॉवल आता है, एक्सेप्ट I वॉवल, वॉवल के अलावा I के अलावा जो वॉवल्स होते हैं अगर वो Y से पहले आ रहे हैं, सेकेंड लास्ट लेटर आपका वॉवल है, तो आप सिर्फ S लगाइए और आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक, क्लियर? इफ यू हैव गॉट एनी डाउट, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई डाउट है यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। नाउ कमिंग फॉरवर्ड ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट and Y, we change Y to I and add ES. Okay, so मैंने अभी ऊपर बात की, अगर Y से पहले वाला लेटर आपका वॉवल है तो आप उसमें सिर्फ S ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, अगर Y से पहले वाला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, Y से पहले वाला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट सबको पता है, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, सो लेट अस जस्ट रिकैपिचुलेट द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड इन क्लास UKG। ओके, सो हमने पढ़ा था कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 26 लेटर्स आर देयर। ओके, सो फ्रॉम 26 देर आर 5 वॉवल्स। 5 वॉवल्स आपके कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ठीक है, सो A, E, I, O, U आपके वॉवल्स हैं एंड रिमेनिंग 21 लेटर्स आर ऑल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सो Y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट अगर आपका आ रहा है तो हमें किस तरीके से उसका प्लूरल बनाना है? बहुत ही इजी तरीका है, इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग ये याद रहेगा। आपको क्या करना है कि आपको सिंपली Y को वहां से कट करना है और Y की जगह पर आप I ले लेंगे, और जैसे कि हम पीछे सब में ES लगाते आ रहे हैं बहुत सारे प्लूरल्स में, सेम हमें यहाँ पर करना है, सिर्फ Y को हटाकर I लगेगा और ES हो जाएगा। अगर और इजी समझना है तो आप जहां पर भी Y से पहले कॉन्सोनेंट है Y हटाकर IES लगा दीजिए, योर प्लूरल इज रेडी। फॉर एग्जाम्पल बेबी, बेबी में Y से पहले का लेटर क्या है? B है, B इज अ कॉन्सोनेंट, सो हम क्या करेंगे? Y को काट कर IES ऐड कर देंगे, बेबीज। योर प्लूरल इज रेडी फॉर बेबी। नाउ सिमिलरली लेडी, एज यू कैन सी बिफोर Y जो सेकेंड लास्ट लेटर है हमारा दैट इज D, एंड D इज अ कॉन्सोनेंट, सो फॉर चेंजिंग इट इनटू प्लूरल we will just cut Y from here and add IES into it and it will make your plural for lady and it will be called as ladies. Similarly for story, as you can see the second last letter which means the letter before Y is R and R is a consonant, so we will cut Y from here and add IES, so it will make stories, a plural of story. Clear? So we have done with 5 points. Now coming forward on to the point number 6, that is when a singular noun end in F or FE। अच्छा, जब आपका सिंगुलर नाउन के एंड में लेटर F या फिर FE आए तो हम F और FE को किस में चेंज करते हैं? V में चेंज करते हैं, V, B नहीं, V वैन। ठीक है, एंड एड ES। अच्छा, जिस तरह हमने ऊपर किया था सिमिलरली हमें यहाँ पर करना है, बस डिफरेंस क्या है? हमने यहाँ पर Y को काट कर I ऐड किया था और यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर हमें F को कट करके V ऐड करना है और फिर उसमें ES ऐड कर देना है, सो इट विल मेक योर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल थीफ, ओके, सो थीफ इज एंडिंग इन F। ठीक है, सो F जब आता है या फिर FE आता है तो हमने ऊपर पढ़ा कि हम वहां पर F को कट करके VES जोड़ देते हैं। ठीक है, सो इट विल मेक द प्लूरल फॉर थीफ, दैट इज थीव्स। ओके, सिमिलरली फॉर लीफ, लीफ इज एंडिंग इन F, so we will cut F from here and take VES and will make the plural leaves. Okay, similarly for wife, FE है, चाहे F हो चाहे FE हो, हमें क्या करना है? इसको कट करके इसकी जगह पर VES लेना है and it will make your plural ready for wife and it will be wives. Same for knife. Okay, so clear? So all the 6 points are cleared for the regular plurals. Okay, ये जो सारे आपके रूल्स हैं ये अगर हैं तो विच मीन्स आपका जो प्लूरल है वो रेगुलर प्लूरल कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई प्लूरल होते हैं तो हम उनको इर्रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। ठीक है, अब इर्रेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। देखिए,
हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी इसी वाले रूल के बारे में। देखिए एफ और एफ ई में हमने क्या किया, वी ई एस ऐड कर दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ और है। देखिए हाउएवर द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई, ठीक है, कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिनमें एफ और एफ ई तो होता है, लेकिन उनमें हमें जो है वी ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली उसमें एज इट इज़ सेम स्पेलिंग रखते हैं और एड एस कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका प्लूरल रेडी हो जाता है। जैसे कि रूफ, रूफ में आपको सिर्फ एस ऐड करना होता है, इट विल मेक रूफ्स। अगर आप रूफ में वी ई एस ऐड कर देंगे तो दैट विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। सिमिलरली फॉर जिराफ, हमें यहाँ पर सिर्फ एस ऐड करना है एंड इट विल मेक योर प्लूरल रेडी फॉर जिराफ एंड इट विल बी कॉल्ड एज जिराफ्स। ओके, नाउ